پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کے صاحبزادے حسین نواز دوسری بار جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے. ان سے 6 گھنٹے سے زائد وقت تفتیش کی گئی. ذرائع کا کہنا ہے کہ جی آئی ٹی نے حسین نواز سے ان کے بیرون ملک جائیدادوں، اثاثوں اور کمپنیوں سے متعلق پوچھ گچھ کی. جی آئی ٹی نے حسین نواز سے میفر فلیٹس، ہل میٹلز لمیٹڈ، عزیزیہ مل سمیت دیگر دستاویزات بھی مانگی. اس کے علاوہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعظم کے صاحبزادے حسین نواز کا کہنا تھا کہ جی آئی ٹی نے دوبارہ بلایا تو پھر حاضر ہو جاؤں گا، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. تحقیقاتی ٹیم میں کسی کا رویہ نامناسب ہوا تو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں انشاءاللہ شریف خاندان پر کچھ بھی غلط ثابت نہیں ہو سکے گا. جی آئی ٹی ارکان کا انتظار کیا، ہر سوال کا جواب بھی دیا. مزید سوالات پوچھے گئے تو ان کے بھی جواب دوں گا. جوڈیشل اکیڈمی کے باہر حسین نواز کی میڈیا سے گفتگو. بات کہنے کی جو ہے نا قابل نہ رہ جائے. انتظار بھی کیا ان کا، ہر قسم کے جو ہے نا ان کے سوالات کا جوابات دیے ہیں. اس وقت جب بھی دوبارہ وہ بلائیں گے میں آؤں گا انشاءاللہ. کوئی بھول میں نہ رہے، مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کا رویہ ٹھیک نہ ہوا تو عدالت جاؤں گا. وزیر اعظم کے صاحبزادے نے خبردار کر دیا. کبھی مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ جو ہے نا کوئی رویہ کسی کا جو ہے درست نہیں ہے تو وہ یہ امید نہ رکھے کہ میں کورٹ میں نہیں جاؤں گا اور میں عوام کے سامنے نہیں آؤں گا. حسین نواز کا مزید کہنا تھا کہ ان کے والد یا بہن بھائیوں کے خلاف کوئی غلط بات ثابت نہیں ہو سکے گی. جوڈیشل اکیڈمی میں حسین نواز سے پوچھ گچھ مکمل کرنے میں جے آئی ٹی کو 6 گھنٹے سے زائد کا وقت لگا. وزیر اعظم کے صاحبزادے کو وکیل ساتھ بٹھانے کی اجازت نہ ملی. جے آئی ٹی نے ان سے بیرون ملک جائیدادوں، اثاثوں اور کمپنیز کے بارے میں سوالات کیے، اہم دستاویزات بھی مانگی. 2-2.5 گھنٹے کا انتظار بھی کروایا. یہاں پہ انٹروگیشن ہے. کوئی غلط چیز جو ہے نا اپنا میرے والد پہ یا مجھ پہ یا میرے کسی بہن بھائی پہ انشاءاللہ ثابت نہیں ہو سکے گی. پاناما کا ہنگامہ، حسین نواز سے جے آئی ٹی کے 6 گھنٹے تک پوچھ گچھ. جوڈیشل اکیڈمی اسلام آباد میں وزیر اعظم کے صاحبزادے 11 بجے جے آئی ٹی کو بیان ریکارڈ کرانے پہنچے. حسین نواز کے ساتھ جانے والے وکیل کو جے آئی ٹی نے کمرے سے باہر کر دیا. جے آئی ٹی نے وکیل سے کہا کہ جب ضرورت ہوگی آپ کو اندر بلا لیں گے. حسین نواز نے وکیل کی غیر موجودگی میں سوالات کے جوابات دیے. ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے واجد ضیاء کی زیر صدارت جے آئی ٹی نے حسین نواز سے بیرون ملک جائیدادوں، اثاثوں اور کمپنیوں سے متعلق پوچھ گچھ کی. جے آئی ٹی نے حسین نواز سے میفیئر فلیٹس، ہل میٹلز لمیٹڈ، عزیزیہ مل سمیت دیگر دستاویزات بھی مانگی. حسین نواز حاضر ہوں. جی آئی ٹی نے وزیر اعظم کے صاحبزادے کو کل پھر سے طلب کر لیا. پہلی پیشی پر آپ نے سوالات کے جواب نہیں دیے. 30 مئی کو دستاویزات ساتھ لے کر آئے. مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی نے سمن جاری کر دیا. حسین نواز نے بھی ٹیم کے سربراہ واجد ضیاء کو خط لکھ دیا. کہتے ہیں پہلی پیشی پر تیاری کا مناسب وقت نہیں ملا تھا. نیشنل بینک کے صدر سعید احمد بھی جے آئی ٹی میں پیش ہوئے. بیان قلم بند کروایا. جے آئی ٹی کے تندو تیز سوالات یا روزے کا اثر. حسین نواز اور سعید احمد کی طبیعت خراب. پولی کلینک سے ایمبولینس اور ڈاکٹر کو منگوانا پڑا. دونوں کا بلڈ پریشر چیک کیا گیا. بعد میں دونوں کی طبیعت بہتر ہو گئی. حسین نواز سے اظہار یکجہتی کے لیے لیگی رہنما اور کارکنان بھی جوڈیشل اکیڈمی کے باہر جمع ہوئے. تھکم پیل نعرے بازی کرتے رہے. جوڈیشل اکیڈمی کے باہر بدنظمی بھی دیکھنے میں آئی. سیکیورٹی اہلکار نے نجی ٹی وی کے کیمرہ مین کو تشدد کا نشانہ بنایا. صحافیوں نے واقعے کے خلاف احتجاج کیا. جبکہ وزیر مملکت مریم اورنگزیب نے حسین نواز کی صحت و طبی معائنے کے حوالے سے چلنے والی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ جوڈیشل اکیڈمی میں ایمبولینس جانے کی خبریں چلوا کر میڈیا پر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ طبیعت بگڑنے کے باعث حسین نواز سوالات کے جوابات نہیں دے پا رہے. انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. حسین نواز کی طبیعت بالکل صحیح ہے. یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ حسین نواز کی طبیعت ناساز تھی. کئی ٹی وی چینلز نے اپنی سکرینز کے اوپر دکھایا کہ ایک ایمبولنس پہنچ گئی ہے اور وہ ایمبولنس جو ہے کبھی کہا کہ سعید صاحب جو نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ ہیں ان کے لیے پہنچی ہے, ان کی طبیعت خراب ہے. اور اس کے بعد حسین نواز صاحب کے بارے میں خبریں آئیں کہ ان کی طبیعت خراب ہے. لیکن اصل میں اس میں دونوں میں کوئی بھی چیز
सुप्रीम कोर्ट ने हनीफ अब्बासी के केस में इमरान खान और तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी करते हुए 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पीटीआई चेयरमैन ने जमाइमा से उधार रकम ली, इसे साबित करना होगा। इमरान खान और जहांगीर तरीन की ऑफशोर कंपनियों के खिलाफ केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान ने जमाइमा से उधार रकम ली, इस बात को साबित करना होगा। बनीगाला जायदाद खरीदारी के लिए इमरान खान का जमाइमा से कर्ज लेना साबित ना हुआ तो इसके नताइज क्या होंगे। इस मौके पर नईम बुखारी ने दलाल दिए कि बनीगाला की कुछ अदायगियां इमरान खान ने खुद की, जबकि लंदन फ्लैट की फरोख्त के बाद जमाइमा से ली गई रकम वापस की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने तहरीक इंसाफ के वकील से अहम सवालात के जवाबात भी तलब कर लिए। केस की समाअत कल 11:30 बजे फिर होगी। इतनी गर्मी है लेकिन यह क्या आज भी सियासी पारा हाई ही रहा। लीगी और पीटीआई रहनुमा एक दूसरे पर बरसते ही नजर आए। जुडिशल एकेडमी और सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया के सामने खूब तनकीद का सहारा लिया गया और नून लीग वालों ने तो प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से भी लफ्जी वार किए। एम्बुलेंस जो है कभी कहा कि सईद साहब जो नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट हैं उनके लिए पहुंची है और उसके बाद हुसैन नवाज साहब के बारे में खबरें आई। इसमें दोनों में कोई भी चीज सदाकत नहीं है। इमरान खान के अपने जो स्टेटमेंट्स हैं जो इसने अपने दस्तखतों से गोशवारे अमेरिका के यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट में जमा करवाए, उसमें पता चलता है कि सारे गोश्त इन्वेस्टर हैं। आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी लूटा है और पाकिस्तानियों को भी लूटा है। इस वजह से खान साहब आपसे अगर बात समझ नहीं आ रही, आपके पास 5 साल से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी है, सारे ठेके और सारी चीजें बनीगाला में होती है। फर्क जाहिर होने लग गया। वो लोग जो पिछले 30-35 साल से इस मुल्क में लूट मार कर रहे हैं, अब जब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से उनकी तलाशी शुरू हुई है तो वो बावेला मचाया हुआ उन्होंने। हुक्ला की तब्दीलियां की जाती है, नए एप्लीकेशनें दी जाती है तवालत लेने के लिए। जमीन पाँव के नीचे से सिरक गई है तो एक नई एप्लीकेशन आ गई अकरम शेख साहब की तरफ से। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के बाहर नून लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक रोस्ट्रम की वजह से झगड़ा बना तो आज मीडिया से गुफ्तगू के लिए 1 नहीं 2 नहीं 3 रोस्ट्रम रख दिए गए। और तो और लीगी रोस्ट्रम के प्रोटोकॉल पर पुलिस एहलकारों को भी तैनात किया गया। तफसीलात बता रही हैं आमना अल्पियाल। गुज़िश्ता रोज के मनाजिर देखिए जब लीगी रहनुमाओं और पीटीआई वकला एक रोस्ट्रम पर आग बगोला हो गए, रकम पेल भी हुई। ये डाइस हमारा है। नईम उल हक मीडिया टॉक के बाद डाइस वापस ले गए थे। इस सूरत हाल से बचने के लिए आज लीगी रहनुमा 2 रोस्ट्रम ले आए, जबकि तीसरा रोस्ट्रम तहरीक इंसाफ ने रखा। सिक्योरिटी खदशात के तहत लीगी रोस्ट्रम की हिफाजत और प्रोटोकॉल पर पुलिस एहलकारों को भी तैनात किया गया है। कैमरामैन ज़िया मुमताज के साथ आमना अल्पियाल, न्यू न्यूज़ इस्लामाबाद। मौसम की गर्मी थी कि सियासी गर्मा गर्मी, कुछ भी कहें अल्लाह को रहम आ गया। दिन भर शदीद गर्मी ने ढाल और रोजेदारों ने तो फिर सुख का सांस लेना था क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। दिन भर सूरज ने आंखें दिखाई और शाम में कुदरत ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों पर रहमत का नजूल किया। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश हुई, गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ हुई। शदीद गर्मी से निढाल शहरियों ने सुख का सांस लिया। और कराची की सूरत हाल की बात करें तो रमजानुल मुबारक के 3 रोज में बिजली के 2 बड़े ब्रेक डाउन के असरात से अब तक कराची बाहर न आ सका। रोशनी का शहर की इलेक्ट्रिक की नाअहली के बाद अंधेरों का शिकार बनकर रह गया है। तवील लोड शेडिंग पर शहरी तिलमिला उठे हैं और सड़कों पर निकल आए हैं। रोजेदारों के इबादत में मुश्किलात का सामना है तो खवातीन को सैर इफ्तार बनाने में दुश्वारी ही दुश्वारी है कि इलेक्ट्रिक ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए सारा मलबा नमी पर डाला है। रमजानुल मुबारक का आगाज होते ही कराची में बिजली का दूसरा बड़ा ब्रेकडाउन। बिजली बंद होने से निस्फ शहर तारीकी में डूब गया। आवाम ने तीसरी सहरी भी अंधेरे में की। तभी लोड शेडिंग पर शहरी तिलमिला उठे। शहरियों का सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो सड़कों पर निकल आए और टायर जलाकर एहतजाज किया। ख्वाजा आसिफ साहब
जब रमज़ान से थोड़े ही दिन पहले वो बड़े स्पीच में कह रहे थे कि ना शहर में लोड शेडिंग होगी ना अफ्तार में लोड शेडिंग होगी, बल्कि बिजली लोड शेडिंग क्या बिजली आ ही नहीं रही। हवा में नमी के बायस एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन ट्रिप हुई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने आरजी लोड मैनेजमेंट के जरिए बिजली की फराहमी जारी रखने का दावा किया और साथ ही ये इत्तला भी दी कि आइंदा 2 से 3 रोज भी हाई टेंशन लाइनें ट्रिप हो सकती हैं, क्योंकि हवा में नमी का तनासुब 70 से 80% तक रहने का इम्कान है। कराची में पावर ब्रेक डाउन के जिम्मेदार नहीं, के इलेक्ट्रिक ने बिजली की घंटों बंदिश का मलबा नमी पर डाल दिया। बात यहीं खत्म नहीं होती, कराची वाले भी तैयार रहें, क्योंकि महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 2 रोज भी मौसम नम आलूद रहेगा। यानी कराची वाले फिर किसी ब्रेक डाउन के लिए तैयार हो जाएं। उधर सिंध हाई कोर्ट ने नेपरा को के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया है। कराची में पै दर पे बिजली के ब्रेक डाउन, निस्फ शहर की बिजली बंद, सनते कारोबार ठप और के इलेक्ट्रिक खामोश। लेकिन के इलेक्ट्रिक की ये चुप उस वक्त मीडिया ने तोड़ दी जब इस इदारे के चीफ मार्केटिंग मैनेजर फखर अहमद कमिश्नर कराची एजाज अहमद खान से मुलाकात के बाद चुपके से रवाना हो रहे थे। रात को अगर आप वेदर चेक करें तो 100% ह्यूमिडिटी फैक्टर था, जिसकी वजह से कुछ EHT लाइंस में ट्रिपिंग आई थी। के इलेक्ट्रिक के चीफ मार्केटिंग मैनेजर ने सिर्फ हवा में नमी को ही मूरद इल्जाम नहीं ठहराया, बल्कि ये भी कह दिया कि 1-2 रोज में इसी तरह के नामालूद मौसम की पेशन गोई की गई है। यानी कराची वाले फिर किसी ब्रेक डाउन के लिए तैयार रहें। 100% ह्यूमिडिटी जो है वो वेदर फोरकास्ट है और इस हीट में ह्यूमिडिटी में जो है वो लाइंस थोड़ी सी इफेक्ट होती हैं। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट ने शहर भर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग करने के खिलाफ दायर दरखास्त पर महफूज किए जाने वाला फैसला सुनाते हुए नेपरा को के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बिला इम्तियाज कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। कैमरामैन राहिल के साथ हसन कोहाटी, न्यूज़ कराची। माह रमजान, शदीद गर्मी, ऊपर से लोड शेडिंग, शहरी शदीद अजियत में मुब्तला हो चुके हैं। हाथ वाले पंखे से हवा लेने पर मजबूर है, जिसे पंजाबी में पक्खी कहा जाता है। कराची की सूरत जानते हैं। कराची के कई इलाके अंधेरे में डूबे हैं। हमारे नुमाइंदे सरफराज कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज, बताएगा आप किस इलाके में मौजूद हैं, यहाँ पर बिजली आ रही है या नहीं आ रही, शहरियों की इस हवाले से क्या राय है, क्या कहना है उनका, कितनी मुश्किलात का सामना है शहरियों को? शदीद लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है कि इलेक्ट्रिक की सितम ज़रीफियां भी जारी है। कराची के कई इलाके अंधेरे में डूबे हैं। शहर अफ्तार में भी लोड शेडिंग की जारी है। अवाम की जानिब से हमने देखा कि एक शदीद एहतजाज किया गया, रोड्स ब्लॉक की गई, टायर भी जलाए गए हैं, कई लाइनें ट्रिप कर गई हैं। सरफराज कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सरफराज, आप किस इलाके में मौजूद हैं, यहाँ पर बताएगा कि बिजली आ रही है या नहीं आ रही, शहरियों की जानिब से एहतजाज भी किया गया, किस तरह की मुश्किलात का सामना है शहरियों को? हम मौजूद हैं लाइंस एरिया के इलाके में, जहां पर ये पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ है। कराची के तमाम इलाकों से ही इसी तरह की इतलात आ रही हैं। गुलशन इकबाल, महमूदाबाद, कुरंगी, लांडी, गुलशन हदीस समेत बेशतर इलाके ऐसे हैं जहां से ये इतलात आ रही है। इस वक्त भी कराची का जो बेशतर इलाका है वो अंधेरे में डूबा हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ कराची को एक बड़े ब्रेक डाउन का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में आधे से ज़्यादा शहर जो है वो अंधेरे में डूब गया। हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि रमज़ान में सहर व अफ्तार में जो है लोड शेडिंग नहीं की जाएगी, जबकि तरावी के औकात में भी लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। लेकिन इस वक्त तरावी के औकात हैं, तरावी अदा की जा रही है, लेकिन अंधेरे में डूबा हुआ है कराची का बेशतर इलाका। और हुकूमती ऐलानात के बावजूद के इलेक्ट्रिक जो है उन पर अमल दरामद नहीं कर रही। बेशतर इलाके जो है अंधेरे में डूबे हैं। लोग जो है सहर व अफ्तार जो है अंधेरे में करने पर मजबूर हैं। कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, नमी की वजह से हब्स बहुत ज़्यादा है। इस वक्त भी इस इलाके में बेशतर जो इलाके के जो मकानात हैं उनकी छतों पर ख़वातीन जो है मौजूद हैं, क्योंकि ज़ाहिर घरों में लोग जो है बैठ नहीं सकते। बच्चे इस वक्त बाहर निकले हुए हैं। बड़ी तादाद इलाका मकीनों की इस वक्त बाहर मौजूद है कि घरों में हब्स होने की वजह से वो घरों में बैठ नहीं सकते और बाहर हवा के लिए आए हैं। जी ठीक है सरफराज खानी, आपने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। शहरी शदीद मुसीबत में मुब्तला इस वक्त और सड़कों पर निकल आए, उनकी जानिब से शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। कई खत लिखे कि इलेक्ट्रिक के अफसरान से राब्ता भी हुआ, विफाकी हुकूमत से भी बात हुई, लेकिन लोड शेडिंग कम ना हो सकी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने की इलेक्ट्रिक की नाकामी की तमाम तर जिम्मेदारी विफाकी हुकूमत पर डाल दी। कहते हैं सूरत हाल में के इलेक्ट्रिक को टेक ओवर नहीं कर सकते। के इलेक्ट्रिक का निजाम 20% भी काम नहीं कर रहा।
से भी प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर वाटर एंड पावर, सेक्रेटरी वाटर एंड पावर, एक बार नहीं पिछले 10-15 दिन में कई बार उनसे बात की, उनको खतूत लिखे, कई परसों खत लिखा था, उसमें मैंने बताया, कल फिर फौजी साहब का फोन भी आया था और उसमें मैंने उनको इशू बताया था और वो इशू पहले मैं बता चुका था मैं कि इलेक्ट्रिक को मैं इससे मुस्तस्ना नहीं करता, उनको अपना सिस्टम बेहतर करना चाहिए और उसको अभी फिर कहा गया है और इसीलिए मैंने फेडरल गवर्नमेंट से भी बात की दोबारा। मैंने फेडरल गवर्नमेंट को बताया था कि जी आपका ये सिस्टम अगर रिपेयर नहीं होगा रमजान से पहले तो रमजान मुबारक में लोड शेडिंग न करने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। इफ्तार, तरावी और सहरी में लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। मुल्क के बेशतर शहरों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 16 से 18 घंटे तक पहुंच गया। रोजे की हालत में शदीद गर्मी से आवाम बेहाल हो गए। कई शहरों में एहतजाज किया गया। रमजानुल मुबारक में भी लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। सहरो अफ्तार में लोड शेडिंग न करने के हुकूमती दावे धरे के धरे। कई शहरों में मुजाहिरे। पिशावर में 3 रोज से जारी एहतजाज भी लोड शेडिंग को ना रोक सका। मुख्तलिफ इलाकों में अब भी 8 से 18 घंटे तक की लोड शेडिंग से अवाम बेहाल है। गर्मी है बहुत ज्यादा, बच्चे ज्यादातर मुतासर हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, तो इनको चाहिए कि लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जिला लिया की तहसील करोड़ लाल हुसैन में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर अवाम सड़कों पर निकल आए और लिया रोड पर टायर जलाकर शदीद एहतजाज किया। फैसलाबाद में भी लोड शेडिंग से सताए शहरियों ने सड़कों पर निकल कर एहतजाज की धमकी दे दी। बच्चों को पढ़ने में तकलीफ, रोजा रखने में, सहरी में, अफ्तारी में इतना मसला है। इधर हैदराबाद में भी 3 रोज के दौरान 2 बड़े ब्रेक डाउन की वजह से 76 ग्रिड स्टेशन को बिजली की फराहमी मुअत्तल रही, जिसकी वजह से सिंध के बेशतर शहरों में आवाम को लोड शेडिंग का अजाब झेलना पड़ा। ये बिजली वाले पंखे बंद हुए तो शहरियों ने देसी पंखों का सहारा लेना शुरू कर दिया। उधर वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बिजली की इजाफी लोड शेडिंग पर बरहमी का इजहार किया। काबीना की तवानाई कमेटी को बिजली की पैदावार और लोड शेडिंग के सही आदाद शुमार बताने की हिदायत कर दी। वजारत पानी और बिजली के हुकाम वजीर आजम को आज भी ठोस जवाब न दे सके। लोड शेडिंग के अजाब से छुटकारा कैसे हासिल किया जाए? वजीर आजम नवाज शरीफ और काबीना की तवानाई कमेटी ने दूसरे रोज भी सर जोड़ लिए। वजारत पानी और बिजली के हुकाम तवील लोड शेडिंग का जवाब पेश न कर सके तो वजीर आजम ने बरहमी का इजहार करते हुए बिजली की पैदावार और लागत के अदाद शुमार पर भी अदम इत्मीनान का इजहार किया। वजीर आजम ने बिजली की लोड शेडिंग और पैदावार से मुतालिक सही अदाद शुमार पेश करने और गर्दिशी कर्जों की तस्दीक के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत कर दी। मुल्क भर में गर्मी का राज बरकरार है। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। क़यामत खेज गर्मी ने शहरियों का जीना दो भर कर रखा है। तुरबत में दर्जा हरारत 51 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया। बेशतर इलाकों में सूरज आसमान से आग बरसाता रहा। कई इलाकों में दर्जा हरारत ने निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली। जनूबी पंजाब में शदीद गर्मी और लू के थप्पड़ों ने शहरियों को बेहाल किए रखा। लाहौर का पारा 39 डिग्री पर पहुंचा। कराची में गर्मी की लहर बरकरार, दर्जा हरारत 47 डिग्री पर रहा। पेशावर में भी सूरज के गजब से कोई ना बच सका। दर्जा हरारत 41 डिग्री पर जा पहुंचा। सबसे ज्यादा गर्मी तुरबत में पड़ी, जहां पारा 51 डिग्री को छू गया। ज्योनी में गर्मी का 25 साला रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अभी लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद खतरों के खिलाड़ी। वेलकम बैक। मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबी से जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज की जनूबी और शुमाली वजीरिस्तान और सवात के मुख्तलिफ इलाकों में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मिकदार में असलाह, गोला बारूद और बारूदी सुरंगें बरामद हुई। तो कोयटा में शहीद होने वाले डीएसपी उमर रहमान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद डीएसपी को सरकारी एजाजात के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगी कोयटा से बुशरा कमर।
इलाके जेल रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से शहीद होने वाले डीएसपी उमर रहमान की नमाज जनाजा जहरी ग्राउंड में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में शरीक आईजी पुलिस एहसन महबूब और फायरिंग के वाक़े में जख्मी इंस्पेक्टर बिलाल शम्स डीएसपी उमर रहमान की मैयत देखकर आप दीदा हो गए। नमाज जनाजा के बाद शहीद डीएसपी को तमाम सरकारी एजाजात के साथ सलामी दी गई। जेल रोड पर फायरिंग के वाक़े का मुकदमा सदर थाने में जख्मी इंस्पेक्टर बिलाल शम्स की मुद्दत में दर्ज किया गया। कैमरामैन अहमद नईम के साथ बुशरा कमर, नियो, कोयटा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आलमी अदालत इंसाफ में कुलभूषण केस के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। अपोजिशन कुलभूषण मामले पर कानूनी हिकमत अमली से गैर मुतमईन दिखाई दी। स्पीकर अयाज सादिक का कहना है कि 8 जून को हेग में अटॉर्नी जनरल आईसीजे के सदर से मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रही हैं इफ़त हसन रिजवी। की कौमी सलामती कमेटी का इजलास स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक की जेर सदारत हुआ। इजलास में अपोजिशन अरकान ने शदीद तनकीद करते हुए कहा कि आलमी अदालत इंसाफ में कुलभूषण मामले पर पाकिस्तान का मुकदमा कमजोर और कानूनी टीम ना तजुर्बेकार थी। मीडिया से बात करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि कुलभूषण केस में हम तैयार ही नहीं थे, भारत अपना मकसद हासिल कर गया। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि आज की तफसीली ब्रीफिंग से लगता है हमारी टीम की तैयारी अच्छी है। 8 जून को अटॉर्नी जनरल की सरबराही में हेग जाने वाली कानूनी टीम आलमी अदालत इंसाफ के सदर से मुलाकात करेगी। कौमी सलामती कमेटी का आइंदा इजलास 15 जून को होगा। इफ़त हसन रिजवी, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। और आपको बताएं कि तुर्की में 32 साला नौजवान ने 4000 फीट बुलंदी पर तने हुए रस्से पर चलकर सबको हैरान कर दिया। मौसीकी की रफाकत में 1210 मीटर लंबी रस्सी पर सफर 74 मिनट में तय किया। वेलकम बैक। आपको बताएं, सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के खिलाफ FIA मुतहरिक हो गई। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले मुलजिम को लाहौर से गिरफ्तार करके तशहीरी मवाद कब्जे में ले लिया। फेसबुक और ट्विटर पर फौज, हसास इदारों, विफाकी वज़ीर दाखिला और FIA के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद फैलाने वाले मुलजिम अदनान अफजल को लाहौर से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने फेसबुक और ट्विटर पर नफरत अंगेज मवाद की तशहीर का एतराफ भी कर लिया। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने 3 शहरों में नादरा मेगा सेंटर और एग्जीक्यूटिव पासपोर्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया है। वज़ीर दाखिला का कहना है कि मुल्क के 1000 से जायद पोस्ट ऑफिस में नादरा के दफातर बनाने का फैसला किया गया है। प्रोसेस ऑफ इनॉग्रेशन आइंदा 2-3 महीनों में वो सब मुकम्मल हो जाएंगे। तो हम ये फैला देंगे नादरा सेंटर्स टू ऑलमोस्ट 1500 सेंटर्स ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि मुल्तान विहाड़ी रोड पर कायम मोबिल ऑयल फैक्ट्री में लगने वाली आग की शिद्दत 5 घंटे से जायद गुजरने के बावजूद न कम हो सकी है और न ही अब तक उस पर काबू पाया जा सका है। रेस्क्यू फायर ब्रिगेड और सिटी फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों और सिविल एविएशन की गाड़ियां भी आग बुझाने में मसरूफ हैं। बात करते हैं अपने नुमाइंदे कैसर नवाज भुट्टा से। जी कैसर नवाज भुट्टा, अब मौके पर मौजूद हैं, इतने घंटे गुजर चुके, अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका, वजह क्या है? कि आग ऐसी है या इंस्ट्रूमेंट इतने कम है इधर कि आग बुझाई जा सके? जी बिल्कुल, बिहाड़ी रोड पर जो मोबिल ऑयल कंपनी की जो यहाँ पर आग लगी हुई है, मैं बताता चलूँ यहाँ पर आग की शिद्दत जो है वो पहले दर्जे की है। ये जो गैस होती है या ऑयल का जो है ये पहले दर्जे की आग इस तरह की होती है कि इसको बुझाने में काफी दिक्कत पेश आती है। सबसे बड़ी वजह यह है कि मेन रोड है, यहाँ पर आमद रफ्त को अब इस वक्त मुअत्तल कर दिए गए ताकि रेस्क्यू एहलकार जो है उनको किसी किस्म की जो है फायर ब्रिगेड को दुश्वारी ना हो। और साथ में बताता चलो आपको 8 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की, 4 सिविल एविएशन की जो है इस वक्त काम कर रही है यहाँ पर ताकि आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन 5 घंटे गुजरने के बावजूद भी यहाँ पर आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया। उसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि यहाँ पर
हजारों ड्रम जो मोबाइल ऑयल के यहाँ पे मौजूद थे। बारी बारी जब वो फटते हैं तो दोबारा से आग भड़क उठती है। इस लिहाज से जो रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड के जितने भी फायर फाइटर्स हैं उनको मुश्किलात का सामना है। एक तरफ से आग बुझा तो दूसरी तरफ से वो दोबारा आग भड़क उठती है। तो इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, सबसे अहम इशू यहाँ पर ये चल रहा है कि 3 फीडर जो इलेक्ट्रिसिटी के हैं बाबडा के, वो बंद कर दिए गए हैं। अल हिलाल फीडर हो गया। हर तरीके से कोशिश की जा रही है, लेकिन आग की नोयत ऐसी है, वहां चीजें ऐसी हैं ऑयल के सिलसिले में, जिसकी वजह से आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। बहुत शुक्रिया कैसर नवाज। न्यूज स्पोर्ट्स में बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की, जिसके लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। बर्मिंघम में ग्रीन शर्ट्स ने तवील ट्रेनिंग सेशन किया। राइट हैंडर हो या लेफ्ट हैंडर, फास्ट बॉलर हो या स्पिनर, सभी बड़े इम्तिहान के लिए पुरजोश। कोई कमी नहीं रह जाए, खामी है तो दूर की जाए। यही टारगेट लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने घंटों प्रैक्टिस की। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में पहला मैच 4 जून को भारत से खेलेगा। पाकिस्तान के ग्रुप में जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका भी शामिल है। और आपको बताएं कि जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला ने तेज रफ्तारी से 7000 वनडे रन मुकम्मल करने का रिकॉर्ड भारतीय कप्तान विराट कोहली से छीन लिया। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में अफ्रीका की टीम ने बआसानी 7 विकेट से कामयाबी भी हासिल कर ली। There we go, first signs of aggression from Amla. इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला हदफ के ताक़ुब में मैदान में उतरे तो सिर्फ 23 रन बनाते ही उन्होंने एक रोजा क्रिकेट में 7000 रन मुकम्मल कर डाले। That takes Hashim Amla to 7,000 runs. He's the fastest in the history of the game. हाशिम आमला ने भारतीय कप्तान विराट कोहली का वनडे में तेज तरीन 7000 रन का रिकॉर्ड भी छीन लिया। आमला इस संगे मील पर सिर्फ 150 इनिंग्स में पहुंचे, जो कोहली के इस मकाम तक पहुंचने से 11 इनिंग्स कम है। Gets past Bopara. I think he'll beat the sweeper as well. Very well played from Amla. इस मैच में अगरचे अफ्रीकी टीम ने इंग्लैंड को बआसानी 7 विकेटों से शिकस्त दी, लेकिन मेजबान इंग्लिश टीम 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से जीत गई। Because they've never managed to achieve a victory in a one-day international. वेलकम बैक। कौमी असम्बली लिए चलेंगे, जिसके इजलास में मेंबरान ने एक दूसरे पर खूब लफ्जी गोलाबारी की, एहतजाज किया और गो नवाज गो के नारे भी लगाए जाते रहे, जिसके बाद ऑपोजिशन बजट सेशन लाइव ना दिखाने पर इजलास से वॉकआउट कर गई। कौमी असम्बली इजलास में हंगामा। वफाकी वजीर राना तनवीर की तकरीर पर अपोजिशन का सख्त रद्द अमल ईवान सर पर उठा लिया। सरकारी टीवी पर बजट सेशन की तकरीर लाइव न दिखाने पर अपोजिशन इजलास से वॉकआउट कर गई। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि अपोजिशन उस मौके पर कायम है कि उन्हें लाइव कवरेज दी जाए। मैंने आज अंदर भी बात की है, बाहर भी ये कहना चाहता हूँ कि अपने मकसद के लिए अपोजिशन को वो मौका देते थे लाइव होने का। इस मौके पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हर मुश्किल वक्त में हुकूमत स्पीकर का ही सहारा लेती है। अगर उसी बेबसी का मुजाहरा हम देखते रहेंगे तो स्पीकर के ऑफिस की आफादियत कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सहर और अफ्तार के औकात में बिजली नहीं होती। पूरा KPK सरापा एहतजाज है। अपोजिशन का काम अवाम के मसाइल को उठाना है। वज़ीर दाखिला सिंध सुहेल नंबर सियाल ने शहर की मुख्तलिफ मसाजिद का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा भी लिया। वज़ीर दाखिला सिंध का कहना था कि शहर में अमन व अमान बरकरार रखना अव्वलीन तरजीह है। IG को काम नहीं करने दिया जा रहा, ये मेरे इल्म में नहीं। IG सिंध पूरे इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं। दौरा करने का मकसद ये है कि अचानक मैं वहाँ पे आऊँ, देखूँ कि पुलिस जो है वो वहाँ पे अपने फराइज अंजाम दे रही है या नहीं दे रही। मैंने इनसे यही पूछा है कि आज हो सकता है मेरे आने की वजह से इंतजाम कुछ मजीद हो। अब आपको बताएं कि दालबदीन का हाफिज इस्मतुल्लाह शिराज कुरान पाक के नुस्खे हाथ से लिखता है। इस कातिब ने 2 साल में कुरान पाक के 7 नुस्खे लिखे हैं। अल्लाह के कलाम से मोहब्बत करने वाला ये कातिब रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में कुरान पाक के मजीद 2 नुस्खे मुकम्मल करना चाहता है। कोयटा से रिपोर्ट कर रही हैं बुशरा कमर। अलम तर अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिल अर्द। हर नए दिन का आगाज अल्लाह के कलाम से करने वाला जिंदगी के हर गम से दूर हो सकता है। दालबंदीन से ताल्लुक रखने वाला 22 साला हाफिज इस्मतुल्लाह शिराज भी अल्लाह के कलाम से मोहब्बत करने वाला है। सुबह सवेरे नमाज के बाद कुरान पाक लिखना शुरू करता हूँ
तकरीबन रात के 11-12 बजे तक। हाफिज असमतुल्लाह का कहना है कि जब इन्हें पता चला कि एक मिस्री आर्टिस्ट ने हाथ से दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक लिखा तो इनके दिल में भी ये जज्बा पैदा हुआ। निहायत खुशखत कुरान पाक के ये नुस्खे एराब से भी मुज़य्यन हैं। हाफिज असमतुल्लाह का कहना है कि वो सारी जिंदगी अपने हाथ से कुरान पाक के नुस्खे लिखना चाहता है। ये पेन मैं इमाम काबा अल शेख अब्दुर्रहमान सुदैस को अपने हाथों से खुद उसे प्रेजेंट। हाफिज असमतुल्लाह की ये भी ख्वाहिश है कि वो इस बाबरकत महीने में कुरान पाक के मजीद 2 नुस्खे मुकम्मल करे। कैमरामैन अहमद नईम और साथी रिपोर्टर अनवर बलोच के साथ बुशरा कमर, नियो न्यूज, दालबंदीन। रमजानुल करीम में बरकतों के रंग नियो न्यूज के संग जारी हैं। पैगाम रमजान की खूबसूरत नशरियात ने नाजरीन में बेपनाह मकबूलियत हासिल कर ली। अवाम ने इसे खूब सराहा। आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहमत। न्यू न्यूज की इफ्तार ट्रांसमिशन हमदो सना के नजराने पेश। बात बनी बोलो अली अली। पाकिस्तानियों के किचन में बनाए गए मजेदार फ्राइड चिकन सैंडविचेस। सैयदा बीबी फातिमातुल ज़हरा की इस्लाम के लिए खिदमत पर रोशनी डाली गई। सैयदा कायनात को जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी बेटी बना के भेजा कि जो खैर कसीर की मालिक बनी। जन्नत जिसके बेटों की जागीर है और खुद फातिमा कायनात की औरतों की सरदार है। रफाकत अली खान ने खूबसूरत कलाम पेश किया। किया खैबरी फतह वो है मुश्किल कुशा बोलो अली अली बोलो अली अली। उलमाए कराम ने भी दीनी मसाइल पर आगाही दी। टीम न्यू न्यूज के मुनफरद अंदाज ने नाजरीन के दिलों में घर कर लिया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको दिखाएंगे ड्रैगन फेस्टिवल। ब्रेक के बाद आपको बताएं, तहरीक आजादी के हीरो सब्जार अहमद को खिराज तहसीन पेश करने के लिए कश्मीर ने तड़ाल मार्च किया, जिसे रोकने के लिए भारतीय फौज ने जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी। सख्त कर्फ्यू के बावजूद कश्मीरी बच्चों ने तड़ाल में आजादी रैली निकाली। आजादी के हीरो शहीद सब्जार अहमद की अजीम कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश करने के लिए तड़ाल मार्च। सब्जार अहमद के आबाई इलाके तड़ाल समेत पूरे मकबूजा कश्मीर में सख्त कर्फ्यू। भारतीय फौज ने तड़ाल मार्च को रोकने के लिए जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी। तड़ाल में सख्त कर्फ्यू के बावजूद कश्मीरी बच्चों ने आजादी रैली निकाली। श्रीनगर समेत कई शहरों में हड़ताल, दुकानें बंद, ट्रांसपोर्ट मुअत्तल, जबकि हुर्रियत की आदत नजर बंद है। अभी आपको बताएं कि बाबरी मस्जिद केस में बीजेपी के सीनियर रहनुमाओं एल.के. अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 12 अफराद पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। तमाम मुलजमों ने सहित जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने 50-50 हजार रुपए के मुजल्लों पर सबकी जमानत भी मंजूर कर ली। बीजेपी रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। लखनऊ की खसूसी सीबीआई अदालत बाबरी मस्जिद की शहादत के हवाले से 2 मुकदमात की समाअत कर रही है। बीजेपी तीनों रहनुमाओं की अदालत आमद के बाद इन पर फर्द जुर्म आयद करके इन्हें जमानत दी गई है। बीजेपी के तीनों लीडरान समेत 12 अफराद पर फर्द जुर्म आयद होने के बाद अगली पेशी से ट्रायल का आगाज किया जाएगा। बाबरी मस्जिद केस में पहले से ही 16 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। बांग्लादेश, श्रीलंका और रूस तूफानों की जद में आ गए। बांग्लादेश में समुद्री तूफान मूरा के बाइस 6 अफराद हलाक हो गए। मॉस्को में हवा के तूफान से 16 अफराद लुकमाए अजल बन गए। श्रीलंका में तूफानी बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के बाइस हलाकतों की तादाद 193 हो गई। समुद्री तूफान मोरा ने बांग्लादेश के शुमाली इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के बायस हजारों मकानात तबाह हो गए। 10 लाख से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल, एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए। श्रीलंका में एक हफ्ते से जारी तूफानी बारिशों और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा रखी है। सैलाबी रैले और मिट्टी के तोदे गिरने से लाखों अफराद बेघर हैं। 100 से ज्यादा लापता अफराद की तलाश जारी है। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में 70 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के बायस घरों, इमारतों, दरख्तों को शदीद नुकसान पहुंचा। सैकड़ों दरख्त जड़ से उखड़ गए, कई इमारतें जमीन बोस हो गईं। सफर करें और भी सहूलत से BMW का स्मार्ट स्कूटर, जिसमें ना सिर्फ रिवर्स गियर भी लग सकता है बल्कि शामिल हैं बेशुमार नित नए फीचर्स भी।
BMW की स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर, टच स्क्रीन पर रास्ते का तयन, ऑनलाइन नक्शों से महफूज और छोटा रास्ता। करें सहूलत से सफर। स्मार्ट स्कूटर में मौजूद सीट सारिफ की मर्जी के मुताबिक एडजस्ट हो जाए, और तो और स्कूटर में रिवर्स गियर भी है। इस स्कूटर के साथ आएगी स्मार्ट जैकेट, जिसकी आस्तीनों पर लगे बटन से करें अपनी मर्जी की तब्दीलियां। कंपनी ने स्कूटर की कीमत और मार्केट में पेश करने की तारीख नहीं दी। और चीन में जारी ड्रैगन फेस्टिवल में कश्तियां दौड़ाएं, ढोल बजाएं या बतखें पकड़ें, इस मेले में है सब आजादी। चीन के शहरों जियाजिंग और ग्वेजू में ड्रैगन फेस्टिवल में हुए मुख्तलिफ खेल। नानहू झील में लोगों ने तैराकों के दरमियान बतखें फेंकी, कोई इनको पकड़ने में कामयाब रहा तो कोई दूसरों की तरफ ही देखता रहा। ड्रैगन कश्तियों के रेस के दौरान ढोलचियों ने बजाए ढोल, बाजीगरों ने कश्ती पर दिखाए करतब। 24 टीमों पर मुश्तमिल इस रेस में कश्ती बानों ने खूब जोर लगाया। आखिर में खास चीनी रिवायती डिश जोंग्स को पत्तों में लपेटने का मुकाबला भी हुआ। न्यू न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए न्यू न्यूज के साथ रहिए। देखते रहिए न्यू पाकिस्तानियों।